went through the general tariffs in general. We talked about tariff reforms. We talked about tariff protection. And before that, we also touched upon the topic of introduction to the WTO. And while we were discussing the introduction to the WTO, we also tried to go through the 4 basic rules of the GATT. And those 4 basic rules I'll just repeat for your consumption. Number 1 is that protection to domestic industry only through tariff. This means that you have to protect your domestic industry primarily through tariffs only. You can take some other measures, but we'll see what those measures are, that is the non-tariff barriers, and under what circumstances you can take them. And for that, under what WTO agreements they are applicable. Then we talked about the second rule was under the market access, which said that you have to reduce your tariffs and bind them from further increase. So the second rule was binding of tariffs. And the third rule was that whatever tariff bindings you undertake, whatever concessions you undertake for one country, that has to be taken in respect of all WTO member countries, and the rule was known as most favored nation treatment. And the fourth rule was the national treatment. And the national treatment said that whenever an imported good enters your domestic market, then a government cannot differentiate both in terms of the levy of taxes and the way the taxes are levied or they are charged with respect to the imported product and the domestically produced product. So we covered these 4 points, and now today we're going to cover the general principles to GATT, which basically pertain to the general most favored nation treatment, that commonly known as the MFN treatment, and the national treatment rule in detail. Apart from that, if we are left with some time, we'll also talk about our main topic, that is the market access negotiations and the tariff binding, which again is the basic course and the main and important topic. Now, these 2 principles are also, as I just said, part of the 4 basic rules of GATT, but they are also known as general principles to GATT because they apply throughout the agreements on goods, and we'll see how they apply to the services sector. At the moment, you must have read in the newspapers and also heard a lot of discussion on television that the government is confronted in the decision of grant of MFN status to India. Now, I would like that you guys should take this project. By the way, we are also going to have some projects in the class, research projects, so that you understand the practical side of it. Now, under this agreement, as I said, the government is confronted with the decision whether it should grant MFN status to India or not. Number 1. Number 2, both India and Pakistan are WTO member countries. Can we hold back the decision of giving MFN status to India while India has already unilaterally granted the MFN status to Pakistan? What are the implications? What are the legalities? How can we stop it? Can we really stop it or not? What are the benefits in giving? What are the adverse effects to the industry in giving away MFN? We'll try to cover in this subject. So who's going to take care of this? Somebody can. Now, this general most favored nation treatment is covered under Article 1 of GATT 1994. Now, this is the first article of GATT 1947, now termed as 1994. Now, what does the MFN means and why it is important? First, it is probably the most important principles of the GATT/WTO. And as important as it is, at the same time, it is being negated and flouted
by so many agreements also. There are so many exceptions to it. So the sanctity is there. The importance is there that MFN has to be given, and MFN has got a lot of importance. But there are instances under which the provisions of this MFN agreement under the most favored nation treatment, Article 1 of GATT, is being done away with. So its importance on one side is being lost, but at the same time its importance is there as far as the law is concerned. Now, as I said, it is not directly applicable to the services sector. It depends on how it behaves. In fact, we are not going, since we are not covering the services sector, we will not go into the details of this. But MFN is affected, is also applicable on services as well. Now, what does this mean? This basically means that a non-discriminatory treatment among the members, and the MFN applies to both imports and exports. Now, two things. Number one, indiscriminately amongst the WTO member countries. Now, when we use the word member, we are referring to WTO member. Now, when we proceed further, we'll also see a word contracting party. Now, under GATT, just keep a mental note of it. Under GATT, the member countries were known as contracting parties, but under WTO, the members are known as WTO members. So there are two things. Number one, that non-discriminatory treatment among the members, and the MFN applies to both imports and exports. Now, any example? Example of how it would be applicable on imports and how it would be applicable on exports. If country A declares country B as an MFN, so it will do an import and export to that country. I think it would be like this. इसमें कुछ प्रोडक्ट्स डिक्लेयर नहीं करती जाती कि इन प्रोडक्ट्स में हम आपको डिक्लेयर करते हैं, उनके ऊपर हम आपको स्पेशल फीचर्स ऑफर्स करेंगे. Anybody else? You define some discounts or some kind of additional favors on import and export between two countries. Any idea? It's a status in which certain tariffs would be waived off and certain production may be taken off for that particular nation. Yes, it's basically when we talk of imports, what happens to imports and exports? When imports enter your country, you put levies, you put taxes, you put tariffs. When they leave your country, what do? Either you again put taxes or you remove taxes. You facilitate, you take away the facility, right? So basically, whatever facility, whatever charges you levy at imports or exports for one country, for one WTO member country, have invariably and indiscriminately to be extended to all WTO member countries. Underline is WTO member countries. Now, another thing which is important is that when we talk of products, they should be like products. They should be identical to each other. We'll see what makes them identical and what differentiates them between them from being or inidentical. And then we've got imports like products destined for the territories of other member countries. Now this part is very important because we're going to consider this while we are talking with respect to the grant of MFN status to India. Now, forms of benefits. What basically is covered under MFN? When we talk of tariffs, when we talk of tariffs on imports, we talk of tariffs on exports. What is really covered? Everything. This basically states the benefits covered by MFN treatment may be in the form of advantages. Somebody mentioned here advantages, favors, privileges or immunities granted by a member in respect of a product. So what is an advantage, what is a favor, what is a privilege? Any examples? Yes? Could be on the similar lines as the only industry protect country, same way for exports. Industrial zone की आपने example ली. Industrial zones are of two types. First, there are export processing zones. Number one, there are industrial zones. Export processing zones में duty free माल आता है, duty free चला जाता है. Export processing zone is basically like another country within your country.
in which your rules don't apply. ना लेबर रूल्स अप्लाई करते हैं, ना टैरिफ लगाते हैं, and the reason is that you want goods to come in, be manufactured here and then exported. The second you said is industrial zone. Industrial zone is different. Industrial zone means that there could be a tax holiday. Income tax में relief मिल सकती है. Like we have had Hattar industrial state. उसमें क्या था? What the government did कि उस area की development के लिए certain number of industries, certain classified industries को वहाँ पर उन्होंने लगाने की इजाज़त दी थी. और उसके background में क्या था कि वहाँ पर जो लोग narcotics में डील कर रहे हैं, वो बजाय वहाँ जाके वो they should come here and invest the money. So that is the difference. That is out of it. What could be an advantage, favor, privilege or immunity? इम्पोर्ट कोटा जैसे कॉटन के लिए बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। सब प्रिविलेज की बात है। प्रिविलेज नहीं आई। इम्पोर्ट कोटा तो नहीं मिल रहा, पहले तो स्टेटमेंट को क्वालिफाई करें। एक्सपोर्ट कोटा है ये, उनके मुल्कों के लिए इम्पोर्ट कोटा है, ठीक है। इम्पोर्ट इज कोटा वर आउट ऑफ MFN बिकॉज मल्टी फाइबर अरेंजमेंट वॉज एन अरेंजमेंट आउट ऑफ गैट। उस वक्त टेक्सटाइल गैट में शामिल नहीं था, अगर आप पहले लेक्चर सारे भूलते जा रहे हैं। चूंकि टेक्सटाइल गैट में शामिल नहीं था, टेक्सटाइल किसके तहत रूल होता था? मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के तहत। जब मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के तहत होता था तो दैट वाज आउट ऑफ गैट, तो वो कोटा दें या न दें उस वक्त सिंस इट वाज आउट ऑफ गैट, इस क्लॉज में वो नहीं आता था। Primarily this is quite simple. If you're talking of, say, if we start from here, immunities. What is an immunity? Huh? नहीं। What is immunity? Tax immunity क्या होती है? इम्यून, अच्छा चलें, लेट्स पुट इट दिस वे। आप मेडिकली कहते हैं जी ये हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में जरासीम से, तो हम इम्यून हो गए अब, यूज टू हो जाना। अब आप उसको इम्यूनिटी दे रहे हैं, उसको एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इम्यूनिटी का मतलब ये है, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं जी कि गुड्स अगर फ्रांस से आ रहे हैं तो कराची पे ये कुछ आ रहे हैं कोरिया से और कुछ आ रहे हैं फ्रांस से। आप ये कहें कि जी जो फ्रांस से आ रहे हैं ये कराची पोर्ट पे तो क्लियर नहीं हो सकते, हालांकि दोनों लैंड जो किए हैं वो कराची पोर्ट पे किए हैं, ठीक है। अब आप ये कंडीशन ये लगाते हैं कि फ्रेंच गुड्स जो हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लियर्ड एट कराची पोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर द पर्पसेस कि आप इनको डिस्करेज करें, आप कहते हैं भाई ये कराची के गुड्स ठीक है सी पोर्ट पे आ गए, बट दे वुड गेट क्लियरेंस फ्रॉम पेशावर ड्राई पोर्ट, राइट। और ये जो गुड्स कोरिया के हैं, चूंकि आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप कहते हैं जी ये तो आप बेशक यहां पर KPT कराची कस्टम हाउस पे ही क्लियर कर लें, तो इसको आपने इम्यूनिटी दी है और इसको आपने बर्डन कर दिया। तो आप दूसरे लफ्जों में टैक्स पे अभी हम नहीं आए, अभी तो हम सिर्फ फेवर की बात कर रहे हैं या इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि आप यहां पर जाके उसको दे रहे हैं और यहां पर आपने इम्यूनिटी दे दी कि भाई आप तो अपना गुड्स यहां पर ही क्लियर कर लें। ये डिफ्रेंसिएशन भी नहीं आप कर सकते। देन प्रिविलेजेस, फेवर्स, लॉ में अगर आप कोई उसको टैरिफ की छूट दे रहे हैं, आप कहते हैं जी फ्रांस से जो गुड्स आएंगे वो तो 40% पे क्लियर होंगे, लेकिन जो कोरिया से आएंगे वो 20% पे क्लियर होंगे, ये आप नहीं कर सकते। इम्यूनिटी, हैव यू एवर हर्ड ऑफ टैक्स इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कहते हैं छूट दे देना, टैक्स इम्यूनिटी दे दी, छूट दे दी। फेवर के आप उनको एक इम्यूनिटी दी है, उसको टोटली लॉ में लाके आपने फ्री कर दिया। फेवर आपने दिया, दीज आर नॉट लीगल वर्ड्स, दीज आर फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। व्हेन वी कम टू द एक्चुअल लीगल वर्ड्स, आई वुड एक्सपेक्ट योर इंटरेक्शन ऑन दैट अकाउंट। और फेवर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, आपको ये एडवांटेजेस, फॉर इंस्टेंस 2 मेडिकल इक्विपमेंट आ रहे हैं, एक चाइनीज इक्विपमेंट आ रहा है, एक जापानीज आ रहा है। अब चाइना भी अब WTO का मेंबर है, आप कहते हैं कि चाइनीज गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जनरल परसेप्शन ये है जापानीज गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप एक कंडीशन लगा देते हैं कि चाइनीज गुड्स जो हैं वो आके यहां पर अपनी स्पेसिफिकेशंस को लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, या आप ये कह देते हैं कि चलें डिफेंस में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा लॉ, और जापानीज गुड्स को कहते हैं कि उनको ECG मशीन आई है तो उसको अपनी स्पेसिफिकेशन एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट चाइनीज गुड्स बीइंग सबस्टैंडर्ड गुड्स, आप उनको उसको सब्जेक्ट कर देते हैं कि जी आप इसको सब्जेक्ट टू ए स्पेसिफिकेशन टेस्ट करें। आप यू कैन आस्क हियर कि फिर क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे? उसके लिए टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हैं, सैनिटरी फायर सैनिटरी मेजर्स हैं जिसके तहत क्वालिटी को देखा जाता है।
or maybe dispense pre-shipment inspection. यस, प्री शिपमेंट का भी है कि आपने एक पे कंडीशन लगा दी है कि भाई गुड्स कमिंग फ्रॉम कंट्री ए को आपने ये कंडीशन लगानी है प्री शिपमेंट की और दूसरे को नहीं लगानी. यस. Countries given MFN status, then we provide certain privileges and some leave to its products. But you said that then we have to give same privileges to all the WTO member countries. So the MFN तो concept तो खत्म हो गया. कैसे? So एक most favored nation तो एक बड़ा सा let's say India is given MFN status of Pakistan. तो सर जो privileges हम इंडिया को दें वो सभी WTO members को देंगे. तो फिर तो सर कोई फर्क तो कोई ना हो. फर्क यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ. That is what I am trying to say. नहीं, I'll try to satisfy you on a different account. क्योंकि हर मुल्क हर चीज तो नहीं बना रहा ना. अब जो आपके ये जो आपने सवाल पूछा है इसके बैकग्राउंड में कोई चीज होगी तो आपने सवाल पूछा ना. और जो मैं आपके बैकग्राउंड को समझाऊं, शायद आप इसलिए पूछ रहे हैं कि जब सारे कंट्रियों को एक जैसा ट्रीटमेंट है तो कौन किसको एक्सपोर्ट करेगा और कौन किससे इंपोर्ट करेगा, यही बैकग्राउंड होगा. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को MFN ट्रीटमेंट मिल जाता है. पाकिस्तान के पास क्या चीज है? रॉ कॉटन है. आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज है. ऑल्दो कंपैरेटिव एडवांटेजेस के अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गए कि हम कहते थे जी कि इस मुल्क को कंपैरेटिव एडवांटेज है. अब जापान के पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन वो सबसे आगे. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की तो को वी हैव डन अवे विद. लेकिन जब आप जिस मुल्क को चीज दे रहे हैं, अब आप बांग्लादेश को MFN दिया, बांग्लादेश के पास क्या है? जूट है. और क्या है बांग्लादेश के पास? कोकोनट है, राइस है. तो वो वही चीजें एक्सपोर्ट कर पाएगा ना. तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस होंगी, ट्रेड फोर्सेस होंगी, वो खुद रिएक्ट करेंगी. अब सूरत हाल ये है कि आपके पास इस वक्त देयर आर अबाउट हाउ मेनी कंट्रीज, 193 और समथिंग लाइक दैट. उसमें से 143 तो WTO 145 तो WTO मेंबर कंट्रीज हैं. तो लेकिन जब शुरू में आप देखें तो जब मुल्क थोड़े थे तो 1947 में सिर्फ 23 मेंबर्स थे GATT के मेंबर्स. उसके बाद 50 हो गए, फिर 74 हो गए. तो आप जरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड को अगर ज़हन में रखें और इसको मिलाएं तो फिर प्रोबेबली यू विल बी सेटिस्फाइड विद द आंसर. इस एग्रीमेंट के अंदर हम किसी को MFN ट्रीटमेंट देते हैं या ऑलरेडी जितने भी मेंबर्स हैं सारों को वो ट्रीटमेंट सब मिलता है? एसेंशियली वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बट देयर इज अ प्रोविजन इन केस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेशली इन द लॉ, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं. आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले जरा रिपीट करें क्या क्वेश्चन है. डिस्टिंग्विश ही तो नहीं करना. जब आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो दिस मीन्स कि यू आर होल्डिंग समथिंग बैक. जो द लॉ इज दैट जो आपने प्रिविलेज, जो टैरिफ कंसेशन एक मुल्क को, एक WTO मेंबर कंट्री को दिया है, दैट सेम concession has to be indiscriminately granted to all WTO member countries थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, for same product. थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. जी. एक जगह पढ़ा था, उसमें यही था कि ये मोस्ट फेवरेट नेशन जो वर्ड है लीड करता है कि किसी नेशन को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहे, हालांकि ये इससे ऑपोजिट है. नहीं, वो तो देखिए नहीं, don't confuse the class because these you are probably referring to the three sides of the prism. कि वो 3 साइड्स होते हैं, वो एक प्रिज्म में से देखें तो आपको एक थोड़ी सी चीज टेढ़ी नजर आती है, दूसरी से देखें चीज वही है. बहुत फेवरेट नेशन से लगता है कि किसी खास नेशन को हम ज़्यादा नहीं. द कॉन्सेप्ट इज कि आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन, फॉर इंस्टेंस ये सारी क्लास है ऑल WTO मेंबर कंट्रीज. मैं आपको एक कंसेशन देना चाह रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू मेक यू मोस्ट फेवर्ड नेशन एज फार एज माई कंट्री इज कंसर्न. मैं कहता हूं जी कि मैं आपसे मार्कर्स 10% पे मंगाऊंगा. ठीक है. I have in my own books and in my own system I want you to be my most favored nation. Law says कि ये जो most favored nation मैंने आपको बनाया, ये मैं सिर्फ आपको नहीं बना सकता. This has to be extended to the entire class. अब सवाल यहाँ से जनरेट शुरू होता है, यहाँ से इसका ना जवाब यहाँ पर एंड करता है ना सवाल यहाँ एंड करता है. सवाल ये है कि जब मैंने मार्कर पे तमाम कंसेशन आपको दे दिए तो फिर सब मुझे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे क्या फायदा होगा? ना पहले रुक जाए, इस पे रुक जाए ना. पहले जब आप मुझे मार्कर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं आपसे मार्कर्स इंपोर्ट करूं,
तो मैं सारी क्लास को ये दे दिया, सारों को दे दिया, तो मुझे क्या फायदा हुआ? वहां से वो कंट्री बैठा वो भी मुझे मार्कर्स एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जब मैं आपको एक कंसेशन दे रहा हूं तो मैं क्या चीजें ध्यान में रखूंगा? योर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द फ्रेट इन्वॉल्व, द क्वालिटी इन्वॉल्व, योर कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यू आर गोइंग टू होल्ड टू प्रोड्यूस दिस मार्कर। सारी चीजों को मद्देनजर रख के मैं कंसेशन दूंगा ना। और फिर मैं ये भी देखूंगा कि आपके जो 3-4 और ममालिक हैं जो मुझे मार्कर सप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या रेट है। ओनली देन आई विल कंसिडर दिस। यस, दूसरे देश से आप लेते हैं तो मे बी सर 15% वहाँ पे। क्या चीज? मैं आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। अगर आप मेरे से इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी आपको लेट से 10% देनी पड़ती है। किसी और कंट्री से करते हैं तो उसी प्रोडक्ट पे फर्स्ट के 15% आपको देनी पड़ती है। नहीं, देखिए ना, पहले तो ये स्टेटमेंट को करेक्ट करें। ड्यूटी देनी पड़ती है, वो ड्यूटी कौन लगाएगा? मैं खुद लगाऊंगा। तो मैं क्यों 10% और 15% लगा सकता हूं जब मैंने MFN बेसिस के ऊपर सबको दे दिया? अगर मैंने आपसे 10% मंगानी तो मैं सबसे 10 पे ही मंगाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट से पहले जो था, मोस्ट फेवरेट नेशन से पहले तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे। पहले कर सकते थे। अच्छा, अब मेरा आपने किया कि 10% से आप 5% तक ले आते हैं। ठीक है। आपको उनको रिलेटिवली कम करेंगे या इनका एग्जैक्टली 5%? अगर इफ यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ MFN तो मैं उनके ऊपर चाहे 100% लगा दूं। दे कैन नॉट क्वेश्चन मी। MFN आपको इनको भी रिलेटिव 5% कम करेंगे इनका, या इनका भी 5 मिलेगा? जो मैं आपको जो बेनिफिट दूंगा, जो रेट ऑफ ड्यूटी आपके साथ लगाऊंगा, जिस फॉर्म की असेसमेंट में आपके साथ करूंगा, वो मुझे सबको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली द टैरिफ, इट्स द वे द टैरिफ्स आर इम्पोज्ड। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं फ्रांस के लिए तो मैं कहूं जी भाई तुम पेशावर से जाके क्लियरेंस लो, इसको भी हम डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन कोरियन गुड्स को मैं कहता हूं कि भाई आई एम प्रेफरिंग कोरियन गुड्स, तुम बेशक कराची में क्लियरेंस दे दो। फ्रेंच गुड्स को मैं डिस्करेज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी यू फॉलो ए टेक्निकल एग्जामिनेशन, किसी लैब से जाके पहले टेस्ट कराओ। कोरियन गुड्स को मैं कहता हूं भाई यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट, यू आर इम्यून, राइट? तो वॉट एवर प्रिविलेज, वॉट एवर बेनिफिट, वॉट एवर टैरिफ रेट I apply to you, if you are a WTO member country, then it has to be extended to all the WTO member countries. ये क्यों किया, क्यों ये? Competition is one. ट्रेड तो वैसे भी लीगलाइज होती है। कि आप सेग्रीगेशंस ना कर दें, तमाम पार्टिसिपेशन जो है तमाम मुल्कों की वो ओपन हो। यू आर नॉट सेग्रीगेटिंग कि मैं और आप ही ट्रेड किए जा रहे हैं, रेस्ट दुनिया को मौका ही नहीं मिल रहा। मार्केट एक्सेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब अगर कोई अच्छे मार्केट्स बना रहा है, ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट इट टू मी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इफ आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द क्लास, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्रीटिंग एवरीबडी एट पार। आपकी वीकनेस हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनकी वीकनेसेस हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, रिगार्डलेस आई एम ट्रीटिंग देम एट पार, इक्वल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। सर आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आपने एक को स्पेसिफिकली MFN कह दिया। इसका मतलब है कि आप MFN नहीं कहा। MFN का कॉन्सेप्ट जो है इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग नाउ अवे। अब आगे चल के देखेंगे, ये जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये आपको खुद ही आप इसका जवाब देंगे कि MFN का फायदा है या नहीं है। अब इफ समबडी इज वेरी स्मार्ट, अब फॉर इंस्टेंस मैं टेलीफोन सेट्स इंपोर्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जी मैं टेलीफोन सेट्स इस कंट्री से इंपोर्ट करूं, ठीक है? अब टैरिफ क्लासिफिकेशन अगर आपको थोड़ी सी याद हो, अब मेरे पास सामने दो कंट्रीज हैं, एक ये मुझे टेलीफोन सेट्स दे सकते हैं, एक आप दे सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं इनको भी MFN भी दिया हुआ है, आपको भी दिया हुआ है, इनको भी दिया हुआ है, लेकिन मेरी इंपोर्ट सिर्फ इनसे आए। अब मैं करूंगा क्या? मैं एक ऐसी टेलीफोन सेट्स आप दोनों दे सकते हैं, दोनों में CLI है, दोनों में होल्ड का म्यूजिक है, दोनों अच्छे नॉब शॉप फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये इस मुल्क से आए। और फॉर इंस्टेंस टेलीफोन क्लासिफाई होते हैं चैप्टर 85, 24, 2000 में। ये उसकी PCT हेडिंग है, पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ, ठीक है? आई वॉन्ट दैट आई शुड फेवर दिस कंट्री। MFN तो मैंने दोनों को देना है। मैं ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन ये करता हूं, और फर्दर क्लासिफिकेशन ये करता हूं कि 85, 24, 20, 10 पे तो हो गए टेलीफोन्स जो आप भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं।
प्लस मैं कहता हूं कि 8524.20120 एक और मैंने क्लासिफिकेशन निकाल दी जो कि ये कहती है कि इस टेलीफोन के साथ एक ऐसा एडेड फीचर है जो आप नहीं बना रहे। वो क्या फीचर हो सकता है? फॉर इंस्टेंस देयर इज अ स्क्रीन ऑन द टेलीविजन टेलीफोन, आपकी तस्वीर आ रही है, ये मुझे कहते हैं जी मैं आपको ऐसा टेलीफोन दे सकता हूं। अब MFN तो मैंने आप दोनों को दिया है, इस प्रोडक्ट आप भी ये भेज सकते हैं, आप भी भेज सकते हैं, लेकिन आप ये बना नहीं सकते अभी। तो वर्चुअली MFN दे भी दिया और नेगेट भी कर दिया कि मैंने उसमें एक सब क्लासिफाई करके टेलीफोन प्लस एडेड फैसिलिटी ऑफ फोटोग्राफ मैंने ये डाल दी और इसके ऊपर ड्यूटी मैंने 20 रहने दी, इसके ऊपर 10% कर दी। दिस इज MFN, आई हैव गिवन इट टू बोथ ऑफ यू। लेकिन आपको डिनाई हो गया, इन्होंने फायदा उठा लिया, विच आई वांटेड टू डू। इज दैट क्लियर? आपने कोई जस्ट अ मिनट, यस। इसको लूप होल लेंगे क्या? ये लूप होल नहीं है, ये तो देखिए एवरी लॉ हैज अ लकूना। अब हु इज अ गुड लॉयर जो उस लकूना से फायदा उठा ले? The one who can project, the one who can benefit. It's smartness. But the basic aim of this whole thing fails. Yes, it does. It does. Ji, you had a question. सर मेरी ये सवाल है कि इस केस में एडिड फीचर्स थे, if there are no added features, similar product, Similar products हैं तो अगर आपने इसको 10 दिया है तो इनको भी 10 जाएगा. लेकिन सर आप किस तरह कहेंगे कि इस कंडीशन लेना उस कंडीशन नहीं है? Because he doesn't have the capability. The others sitting there cannot supply because they are not cost effective. तो मैं लेट मी पुट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर एक प्रोडक्ट इजराइल बना रहा है, एक प्रोडक्ट Israel की एग्जाम्पल ठीक नहीं because we don't have trade relations with Israel. Say, name some other country. अगर ऐसी कंट्री से हम ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं और हम इसराइल से तो आपकी ट्रेड नहीं है ना, वो तो हमारा जो सिक्योरिटी पर्पज नहीं है उनके साथ. ठीक है, गॉट द आंसर. राइट. सर ये जो एडेड फीचर की बात करते हैं, अगर दोनों में सेम फीचर है उसको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते नहीं कर सकते? ना. ये तो मैंने आपसे कहा कि हाउ स्मार्ट यू प्ले. बट स्टिल देन द वन विद द लोअर क्वालिटी कैन बेनिफिट. क्वालिटी की तो बात ही नहीं है, देयर इज नो फीचर. क्वालिटी तो अच्छा ना, एक में तस्वीर धुंधली आ रही है, एक में साफ आ रही है. नहीं, क्वालिटी इज नो एस्पेक्ट. क्वालिटी इज नो एस्पेक्ट. क्वालिटी के ऊपर इसका एज सच गैट का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है कि आप क्वालिटी की. हाँ, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल सैनिटरी फायर सैनिटरी मेजर्स हैं, विल टॉक अबाउट देम लेटर. Pardon me? What? नहीं, it is for all items. It is for primary goods. अगर आप गंदम भी बेच रहे हैं, गंदम में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है सिवाय इसके कि आपने उसको लिया, उसको साफ करके छान के बंद कर दिया. Any more questions? We can spend some 5 minutes on it if you want. This all seems to be इस चीज को इंटरेस्टेड बन जाता है कंट्री, जिस चीज में कंट्री स्पेशलिटी है वो कोई प्रोड्यूस करेगा, इस तरह की हर चीज बनाना. One aspect. Number 2, शुरू से we have been talking about market access. Now what is market access? That we take away the speed breakers. इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, we remove them. How do we remove them? कि जो मैंने आपको कंसेशन दिया है वो एक्सटेंड करूं सबको. So it's this on this slide you will find more sharply focused things. Now we talked about coverage of benefits. These benefits could take the form of the following things. Number 1, customs duties, that is the tariff imposed at the time of importation. Now as we discussed, if I am levying 10% duty on the import of something from China, I have to extend that facility to everybody, to every WTO member country. This is the basic rule and should be kept in mind. Charges of any kind imposed on importation or exportation, like import surcharge, variable levies, excise duty or export tax. और सर एक चीज सुनिए, यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी ड्यूटी एक मेंबर कंट्री चाइना पे 15% है और वही इम्पोर्ट ड्यूटी सब कंट्रीज पे, फोर्स जो चाइना में बन रही है उसकी कॉस्ट बहुत कम है. We are not talking about cost. We are not talking about quality. These two things are out for the moment. Take these two things out of your mind. We are only talking of customs duties
That is to say, benefits which have to be extended. Number one, customs duties. The tariffs at the time of importation. Now, if you are charging a rate from one WTO member country, you have to charge the same rate from all the WTO member countries, regardless of the price, regardless of the freight, regardless of the quality, regardless you enjoy good relations with that country or not, except for Israel and India. दो words I'm coming back. Yes. सर एक चीज़ ये है कि not all the countries are MFN. All countries are, all WTO member countries are MFN to you, except India and Israel. Yes. Two terms. दो terms use की एक comparative advantage and the other one Added advantage. added and comparative. Added and comparative. What is a comparative advantage? It's competitive or comparative? Comparative. Competitive. Comparative. Comparatively. Comparative. And other is Other is added advantage. There's the simple terms. They are not. ये जो जापान है वहाँ पे कोई चीज़ पहले तो देखिए कि ये है क्या चीज. What does this mean? What is a comparative advantage? रॉ मटेरियल अगर किसी के पास है डेफिनेटली एडवांटेज विद दैट प्रोडक्ट की जो कंपैरिजन में यूनिकनेस है वो होगी What else? प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर यूनिक Labor. Land. अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूसेस आपके पास होनी चाहिए. आप मतलब if you want to see the comparative advantage in jams and jellies, अगर आपके पास ना यहाँ पर एप्पल हो की क्रॉप हो ना ऑरेंज की क्रॉप हो तो आपको तो कोई एडवांटेज नहीं है ना. लेकिन इस थ्योरी का जो सिलसिला था जब आप जापान को कंसिडर करते हैं कि दे डोंट हैव एनीथिंग, व्हाट दे डू, दे इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स, fabricate them, manufacture them, value add them and export them or use within their country. तो उन्होंने तो comparative advantages की बात की खत्म कर दी. So this concept अंडर उनको नुकसान पहुंचाएगा जी इसके अंदर एमएफएन के अंदर MFN का comparative advantage से तो कोई तल्लुक नहीं है ना. ये तो मैं आपसे जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है उसकी एक अपनी फिजिबिलिटी है कि वो देखता है कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज कॉटन की शक्ल में है या नहीं है, लेकिन उसका असर MFN के डिसीजन के ऊपर नहीं होगा. कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, उसको बाकी दो चार चीजों को उसमें एमलगमेट ना करें. डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट्स, कीप देम क्रिस्टल क्लियर एंड शार्प. You just said India is not an इंडिया इज नॉट not a most favored nation. टू पाकिस्तान. To Pakistan. Yes, but for India we are most favored nation because India has unilaterally granted MFN to Pakistan. What is unilaterally? One sided, जो खुद ही जो grant कर दे. We'll talk about that. We hold your question. Now number one is that customs duties at the time of importation. Now I want you to just cram this idea, this concept into your mind that any rate given to one country has to be extended to all WTO member countries. It's simple. अगर मैं एक कंट्री को 10% पे कोई चीज मंगा रहा हूं तो आई एम बाउंड कि मैं तमाम मुल्कों से वही चीज 10% के ऊपर ही मंगाऊं. मैं ये नहीं कर सकता कि WTO मेंबर कंट्रीज में से कुछ को मैं 10% पे आने की इजाजत दे दूं और कुछ को मैं 20% पे मंगाऊं. दिस इज नॉट पॉसिबल. Charges of any kind. What is meant by charges? Obviously, other than customs duties. Now, anything other than customs duties at import stage is known as para tariff. Not tariff itself, like para tariff, like army and paratroopers, or not paratroopers, or paramilitary forces. What are paramilitary forces? Which are, in fact, it is not army, but something to do with army. So, charges anything which has to do with tariffs